Hello guys, hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel Neet Experience. Today I will discuss 130 most important questions from the chapter Photosynthesis. All these questions will boost your preparation for Neet 2023. So बिना कोई देरी के चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो. Today's topic photosynthesis. Question number 1. In photorespiration, glycolate is converted into serine and carbon dioxide in mitochondria, chloroplast, vacuoles, peroxisomes. तो इसका आंसर आएगा mitochondria. Next, in the C4 pathway, which of the following molecules combines with carbon dioxide? Glyceraldehyde phosphate, ribulose bisphosphate, phosphoenol pyruvic acid, citric acid. आंसर आएगा ऑप्शन 3. Dark reactions of photosynthesis are actually not totally independent of light as option 4 में देखो आप, they utilize the products of the light reaction. ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन 4. Which stage of the Calvin cycle utilizes ATP? तो in case of Calvin cycle, the reduction stage and the regeneration step यानी both 2 and 3 utilizes energy or ATP. ठीक है. Next, compared to retinal, chlorophyll can be described as a pigment that has a narrow absorption range but high efficiency. यानी option 1 is correct answer. At about what percentage of the full sunlight does light saturation occurs in photosynthesis? आंसर आना चाहिए 10%. Option 1. For assimilation of one CO2 molecule via photosynthesis, the energy required in form of ATP and NADPH2 are for assimilation of one CO2 molecule. For one CO2 molecule, there is requirement of 3 ATP and 2 NADPH2. यानी option 3 is the correct answer. ठीक है. Next, चलो जल्दी से करना है. Phosphoenol pyruvate (PEP) is the primary CO2 acceptor in C4 plants. A plant in your garden avoids photorespiratory losses. Photorespiratory losses avoid, has improved water use efficiency, show high rates of photosynthesis at high temperature, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological groups would you assign this plant? तो this plant is C4 plant. ठीक है. इन केस ऑफ C4 प्लांट ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पाए जाते हैं. नेक्स्ट, इमर्सन्स इन्हेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ 2 photosystems operating simultaneously: photophosphorylation and cyclic electron transport, oxidative phosphorylation, photophosphorylation and non-cyclic. यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. 2 photosystems operating simultaneously. ठीक है. इमर्सन इफेक्ट. इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाइस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन ऑप्शन 1 लुमेन ऑफ थाइलाकॉइड, ऑप्शन 2 इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ऑप्शन 3 एंटेना कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन 4 स्ट्रोमा. तो आंसर क्या आना चाहिए? लुमेन ऑफ थाइलाकॉइड, हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट थाइलाकॉइड लुमेन, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, स्ट्रोमल मैट्रिक्स. आंसर क्या आना चाहिए? स्ट्रोमल मैट्रिक्स. ठीक है. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. An oxygenic photosynthesis is characteristic of Rhodospirillum, Spirogyra, Chlamydomonas, alba. Answer है option 1 Rhodospirillum. The correct sequence of cell organelles during photorespiration is, तो during photorespiration chloroplast, then आएगा peroxisome, then आएगा mitochondria. यानी option 3 is the correct answer. ठीक है. PGA as the first CO2 fixation was discovered in photosynthesis of bryophyte, gymnosperms, angiosperms and option 4 algae. तो आंसर क्या आना चाहिए? algae. जो PG है वो है कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड. ठीक है. यानी फॉस्फोग्लिसरेट. तो कैल्विन साइकिल पाए जाते हैं कौन कौन सी केस में? लेग्यूम्स में और ग्रासेस में. तो इन केस ऑफ algae that was discovered. नेक्स्ट, C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants due to higher leaf area, no.
प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल्स, हाँ 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो लीफ में क्या ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ C4 प्लांट्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल molecule of photosystem 2 are accepted first by साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, प्लास्टोक्विनोन एंड फेराडक्सिन। तो इसका आंसर आएगा प्लास्टोक्विनोन। यहाँ पर सिर्फ क्विनोन दिया हुआ है, आंसर क्या आना चाहिए प्लास्टोक्विनोन, PQ, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसे। फोटोसिस्टम 2 से पहले PQ पे आते हैं, ठीक है, फिर जाएगा B6, देन जाएगा प्लास्टोसायनिन। इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशंस ऑकर इन मेजोफिल सेल्स, मेजोफिल सेल्स, ठीक है। इन फोटोसिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है FES, ऐसे दिया हुआ है FES। तो ये होता है इन फोटोसिस्टम 1, इन केस ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड इन केस ऑफ फोटोसिस्टम 2 देयर इज फाइओफाइटिन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस ऑकर इन, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन कौन से केस में, फोटो रेस्पिरेशन के केस में। तो आंसर क्या आएगा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पारोक्सीजोम्स, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाई हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन आएगी तभी तो फोटो रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन द फोटो रेस्पिरेशन फेवर्ड। द C4 plants grow very efficiently in warm climates because they consume fewer ATP molecules for glucose synthesis. Option 2 minimize photo respiratory losses. तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, following is needed in the ionic form during non-cyclic photophosphorylation but not during cyclic photophosphorylation in higher plants, ठीक है। तो in case of non-cyclic photophosphorylation that ion is needed and in case of cyclic photophosphorylation that ion is not needed. तो which is this ion? This ion is manganese, ठीक है, बिकॉज मैंगनीज क्या करते हैं, मैंगनीज करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन lumen of the thylakoid, in the lumen of the thylakoid the manganese helps in photolysis of water, ठीक है। लेकिन in case of cyclic photophosphorylation that is not happen in the lumen of the thylakoid, that is happened in the stromal thylakoid, so manganese is not needed and there is not also photolysis of water. So बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सिली मिस्टेक नहीं करना है। प्रोडक्शन ऑफ NADPH in a chloroplast takes place during cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली ATP क्रिएट होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है NADPH एंड ATP दोनों ही होते हैं, ठीक है, क्रिएट होते हैं, बनते हैं। द फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट स्प्लिट वाटर टू ऑब्टेन रिड्यूसिंग पावर आर पर्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आना चाहिए, फोटो ऑटोट्रॉप्स पूछा है ना, तो पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है। और क्या पूछा है, दैट डू नॉट स्प्लिट वाटर। तो इन केस ऑफ पर्पल बैक्टीरिया दे यूज्ड H2S, दे यूज्ड H2S फॉर द हाइड्रोजन डोनर, ठीक है, H2S। सो वहाँ पर ऑक्सीजन की कोई बात नहीं होता, ठीक है, स्प्लिट वाटर की कोई बात नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन यूजुअली ऑकर्स इन, जो फोटो रेस्पिरेशन है वो किस किस में पाया जाता है, किस किस में होते हैं एक्चुअली, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में, पारोक्सीजोम्स में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी 3 सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। इन केस ऑफ 3 सेल ऑर्गेनेली द फोटो रेस्पिरेशन फाउंड। ब्लैकमैन्स लॉ इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। Photosynthetic bacteria do not contain quantasomes PS1 and PS2, PS1 ऑप्शन 4 PS2। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है,
जैसे कि पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, दे डू नॉट कंटेन फोटोसिस्टम 2 cause they do not have H2O, they do not used water, so फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, सो वहाँ पे फोटोसिस्टम 2 वर्क नहीं करता है, इसका मतलब है डू नॉट कंटेन फोटोसिस्टम 2। ठीक है, नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेटरी कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल यानी फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन तो इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, पारोक्सीजम में होते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स स्टार्ट्स फ्रॉम फॉस्फोग्लाइकोलेट, हिल रिएक्शंस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड, याद रखना होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वाटर यूज ही नहीं करते हैं तो वाटर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। ठीक है, दे यूज H2S, दे यूज H2S फॉर हाइड्रोजन डोनर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स PS1 PS2 बोथ PS1 एंड PS2 एंड P680, तो इसका आंसर आएगा क्या, PS1। इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली PS1 इन्वॉल्व्स। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोथ PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्फ्यूज नहीं होना। द फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, नॉट 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, दिस इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। PS2 occurs only in stroma granule thylakoid stromal lamella matrix, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रोमल लैमेला। फोटोसिस्टम 2 occurs only in PS2, तो PS2 occurs only in सॉरी PS2 आएगा ग्रानल थाइलाकोइड में। ठीक है, PS1 आएगा तो स्ट्रोमल लैमेला एंड जो ग्रानल थाइलाकोइड दोनों में ही पाया जाता है PS1, लेकिन PS2 ओनली occurs in ग्रानल थाइलाकोइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिली मिस्टेक, इजी क्वेश्चन था लेकिन मैं सिली मिस्टेक करने जा रहा था, ध्यान से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, इज करेक्ट पूछा है, नॉट इनकरेक्ट, इज करेक्ट। फोटो रेस्पिरेशन इज यूजफुल प्रोसेस, दैट इज नॉट ऑल्सो यूजफुल प्रोसेस, सो ये गया रॉन्ग। C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स, ये तो है ट्रू, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस मिले करेक्ट आंसर मिले जल्दी से करो, टाइम की भी लिमिट होती है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन शोज फॉर्मेशन ऑफ शुगर बट नॉट ATP, जो फोटो रेस्पिरेशन है वो ATP भी नहीं क्रिएट करते हैं और शुगर भी नहीं क्रिएट करते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, नीदर ATP और शुगर। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्रांच एनाटॉमी इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ C4 प्लांट्स, इन केस ऑफ C4 प्लांट्स क्रांच एनाटॉमी फाउंड। अच्छा क्वेश्चन, C4 plants have better productivity because C4 plants absorb more light, C4 plants absorb more CO2, C4 plants does not carry photorespiration, C4 plants have more amount of rubisco, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट इज ऑक्जालो एसिटिक एसिड, OAA। ठीक है, ऑक्जालो एसिटिक एसिड। Carbon dioxide is necessary for photosynthesis. The chemical used to remove this gas most effectively from entering a control apparatus is the chemical. Which chemical is used to remove carbon dioxide? That is used potassium hydroxide solution. Yani option 3 is the correct answer. In blue-green algae, photosystem 2 contains important pigment concerned with photolysis of water. It is a phycocyanin. याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन क्रांच एनाटॉमी द बंडल सेल्स हैव, तो इसका आंसर आना चाहिए थिक वॉल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो बंडल सेल्स क्या होता है, थिक वॉल्स होते हैं एंड उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है एंड जो क्लोरोप्लास्ट है वो लार्ज नंबर में होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा टेस्ट में। ठीक है, 100% श्योर। Next, the C4 plants differ from C3 plants with reference to the
substrate that accepts CO2 in carbon assimilation, type of end product, type of pigment involved in photosynthesis, end product that will formed। तो क्या पूछा है, C4 plant differ from C3 plants। तो substrates that accept CO2 in carbon assimilation, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, in case of C4 plants there is substrate is PEP, and in case of C3 plants there is substrate is RUBP। photosynthesis is a physico chemical process, option D is the correct answer। which of the following is not required in photosynthesis। जो क्लोरोफिल है वो तो रिक्वायर्ड है, लाइट भी रिक्वायर्ड है, CO2 भी रिक्वायर्ड है, लेकिन ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, द हाफ लिप एक्सपेरिमेंट वेयर अ पार्ट ऑफ द लिप इज इनक्लोज्ड in a test tube containing some KOH soaked cotton was performed, which showed that dash was required for photosynthesis। तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो CO2 है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कॉर्नेलियस वॉन नील who based on his studies demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction performed his experiment on Callidophora। एनसीईआरटी में लाइन है। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर, तो ये तो है ट्रू। फोटोसिंथेसिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, नो दैट इज रॉन्ग, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लेना आप। व्हाई डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, इन ग्रीन लीव्स, इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नॉट ओनली लीव्स अदर ग्रीन पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन डज नॉट इंक्लूड ATP एंड NADPH, CO2, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, ATP एंड NADPH भी होता है, लेकिन जो CO2 है वो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 2। हाउ मेनी पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ अ प्लांट लीफ, तो इसका जो पिगमेंट आएगा वो आएगा 4 पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट का क्या क्या नाम क्या क्या है, पिगमेंट का नाम है, एक तो है क्लोरोफिल बी, देन कैरोटिनॉइड, देन आएगा जेंथोफिल। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग द क्रोमाटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ अ लीफ प्लांट लीफ, एक्सपेरिमेंटर फाउंड ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर इन द क्रोमाटोग्राम, देन दिस पिगमेंट शुड बी क्लोरोफिल ए। ब्लू ग्रीन, जो क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है वो होता है ब्लू ग्रीन। ठीक है, जो क्लोरोफिल बी का कलर होता है वो होता है ग्रीन येलो। ठीक है, इसका जो ट्रिक है वो मैं शेयर कर दूंगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कौन कौन से पिगमेंट के कौन कौन के कलर है। ठीक है, नेक्स्ट, रेंज ऑफ वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, तो आंसर आना चाहिए 400 टू 400 टू 450 नैनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीप पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर आना चाहिए क्लोरोफिल ए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पर मैनी आना चाहिए, जो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये तो है ट्रू, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये भी है ट्रू। ऑप्शन 3, क्लोरोफाइला आर द मेजर पिगमेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट, ये भी है ट्रू। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर, ये हो गया रॉन्ग, ओनली द क्लोरोफिल ए फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। ऑप्शन 5 में क्या है, क्लोरोफिल ए ट्रांसफर द एनर्जी टू एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये भी हो गया रॉन्ग। ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट जो है ट्रू है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है 3। आंसर क्या आना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। मैंने ऑप्शंस नहीं दिया क्योंकि प्लेस नहीं था। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 3 ऑप्शन, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल फेज डज नॉट इंक्लूड वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, CO2 एसिमुलेशन, लाइट एब्जॉर्प्शन। जो फोटोकेमिकल फेज है वो डज नॉट इंक्लूड CO2 एसिमुलेशन। ठीक है, बाकी सारे क्या होता है, होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, तो पहला ही ऑप्शन हो गया गलत, नॉट बाय अ ग्रुप ऑफ, ओनली ए chlorophyll A molecule, the reaction center is formed by only a chlorophyll A molecule। ठीक है,
नॉट बाई अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। बाकी ऑप्शंस देख लेना आप, सारे ही ठीक है। इन फोटोसिस्टम 1 P700 refers to adsorption peak of chlorophyll A at 700 nanometer, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In chloroplast, the movement of electrons from photosystem 2 to electron transport system is downhill in terms of redox potential scale, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डाउनहिल होगा, नॉट अपहिल। इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 आर एक्साइटेड बाय रेड लाइट, ऑप्शन 2। फाइनल एक्सेप्टर इन द जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन इज NADP प्लस, ये है फाइनल एक्सेप्टर। ठीक है। इन द जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन एट हाउ मैनी पोजिशंस एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड बाय द लाइट, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए 2, फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ फोटोसिस्टम 2। इन केस ऑफ फोटोसिस्टम 2 देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हैपेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स टू फोटोसिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम 2, ये तो है ट्रू। ठीक है, फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स टू फोटोसिस्टम 2 आर प्रोवाइडेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये भी है ट्रू। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ही तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटोसिस्टम 2 में। ऑप्शन सी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स टू फोटोसिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो ये है रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रॉन्ग पूछा था, इनकरेक्ट। क्वेश्चन में ये आप अच्छे से देख लेना कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट। सिली मिस्टेक के लिए, ठीक है, देखना जरूरी है। Where are the protons and oxygen produced by the splitting of water likely to be released, तो जो प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होता है इन द लुमेन ऑफ द थाइलाकोइड, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन प्लांट सेल्स ATP इज सिंथेसाइज्ड इन, जो ATP है वो सिंथेसाइज होता है किस में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई डज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो पाया जाता है स्ट्रोमा में। ठीक है, सॉरी स्ट्रोमा लेमेला में, स्ट्रोमा लेमेला में होते हैं जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है साइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लेमेली, इन केस ऑफ स्ट्रोमा लेमेली देयर इज प्रेजेंट फोटोसिस्टम 1 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट। इफ ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल देन व्हिच प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू, तो व्हिच प्रोसेस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विल कंटिन्यू। ठीक है। फोटोसिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी मैं गलती से मार्क ये कर दिया था, लेकिन ऑप्शन क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, H2S इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शंस देख लेना, सारे क्या है होंगे, रॉन्ग होंगे। ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इज एक्सप्लेन्ड बाय केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ATP सिंथेसिस इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक ग्रेडियंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। व्हाट डज नॉट कॉज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देयर इज प्रोटॉन ग्रेडियंट हैपेंस। ठीक है। मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रू फोटोसिस्टम्स, ये भी एक रीजन है प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए। रिड्यूसिंग ऑफ NADP, ये भी एक रीजन है। देन क्यू साइकिल नहीं आएगा, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉट पूछा था, नॉट कॉज, यानी क्यू। द डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज, क्या पूछा है, द डिफरेंस इन फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज, तो इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट्स व्हेन फोटोसिंथेसिस हैज थाइलाकोइड मेम्ब्रेन across which proton gradient is generated, ये तो है ट्रू। प्रोटॉन एक्युमुलेशन is inside the membrane of thylakoid, यानी ऑप्शन बोथ A and C इज ट्रू। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, वो हम बाद में देखेंगे, रेस्पिरेशन चैप्टर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बोथ A and B आर ट्रू। ठीक है।
छोटा छोटा आइडिया तो रहना ही चाहिए कि इन केस ऑफ रेस्पिरेशन देयर इज प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो होता है उसमें होता है, ठीक है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ प्रोटोन कैरियर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए मैंने एक बार में ही कर दिया, ठीक है। अच्छे से देख लेना, आप रिवाइज कर लेना, ना आए तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। व्हेयर डज एग्जैक्टली द एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम लोकेटेड, तो जो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो थाइलाकोइड लुमिनल साइड ऑफ मेम्ब्रेन यानी ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन सी में देखो आप स्ट्रोमल साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, तो स्ट्रोमल साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ये होगा ट्रू आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोटॉन्स फॉर द रिडक्शन ऑफ एनएडीपी प्लस आर टेकन फ्रॉम स्ट्रोमा, कहाँ से लिया जाता है प्रोटॉन्स, स्ट्रोमा से लिया जाता है, ठीक है। इन फोटोसिंथेसिस व्हाट इज रिड्यूस्ड, एनएडीपी प्लस इज रिड्यूस्ड, इजी क्वेश्चन। विद इन क्लोरोप्लास्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लेस इन व्हिच कंपार्टमेंट, तो क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस इन द स्ट्रोमा, ठीक है। इसीलिए तो जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है वो थाइलाकोइड के लुमेन में ज़्यादा होते हैं, या प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट होता है, क्योंकि थाइलाकोइड के जो लुमेन ऑफ थाइलाकोइड में क्या होता है, प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं एंड स्ट्रोमा में कम होते हैं, इसलिए ही तो ग्रेडियंट क्रिएट होते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब तो पता ही है, एक दिक में कम एक दिक में ज़्यादा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, तो F0 ऑफ ATPase, F1 ऑफ ATPase, PS1 एंड PS2, क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, तो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल जैसे कि F0 ऑफ ATPase, ठीक है। F0 ऑफ ATPase इज लोकेटेड इन आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, यानी ऑप्शन 2 इज द ट्रू। देन आएगा ऑन द साइड ऑफ थाइलाकोइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा, ये भी वही है, आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, थोड़ा गुम गया है, ठीक है, या इसलिए अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, इंपॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रोटॉन मोटिव फोर्स डिजेनरेट्स व्हेयर डज द कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस टेक्स प्लेस, तो दैट शुड बी F1 ऑफ ATPase, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज केमियोस्मोसिस रिक्वायर्स, तो जो केमियोस्मोसिस है वो रिक्वायर्स क्या क्या होते हैं, एक तो मेम्ब्रेन की रिक्वायर होते हैं, प्रोटॉन पंप की रिक्वायर होते हैं, ATPase की रिक्वायर होते हैं एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट की रिक्वायर होते हैं, जो सारे ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, विच एंजाइम कैटालाइजेज द रिएक्शन ऑफ ATP फॉर्मेशन ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस, तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, ATP सिंथेज। ATP and NADPH produced during photosynthesis are used in which of the following reactions, तो बायोसिंथेटिक फेज में वो ATP and NADPH यूज होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द फास्ट डार्क रिएक्शन और CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज, फास्ट डार्क रिएक्शन यानी कैल्विन साइकिल की बात कर रहा है इधर, और जो उसका जो फास्ट फिक्सिंग प्रोडक्ट था, मैंने स्टेबल प्रोडक्ट था, वो क्या था, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड और हচ্ছে ऑक्जालो एसिटिक ग्लिसरॉल्डिएट ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, आंसर क्या आना चाहिए, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, PGA, ठीक है। मेल्विन कैल्विन यूज्ड डैश रेडियो एक्टिव इन डैश स्टडीज फॉर द डिस्कवरी ऑफ फास्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, 14 कार्बन एल्गल फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 and C4 साइकिल आर, इन केस ऑफ C3 देयर इज PGA एंड इन केस ऑफ C4 देयर इज OAA, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वो, ठीक है, पता ही होना चाहिए था, ऐसा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन डार्क रिएक्शन, तो इसका आंसर आना चाहिए कीटोज शुगर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जो डीकार्बोक्सिलेशन है वो नॉट अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस में देखो कार्बोक्सिलेशन इज ऑप्शन
रीजनरेशन इज ऑल्सो ए स्टेप, रिडक्शन इज ऑल्सो ए स्टेप। पहले होता है कार्बोक्सिलेशन, देन होते हैं रिडक्शन, देन आते हैं क्या, रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट कैल्विन पाथवे ऑकर्स ओनली C3, ओनली C4, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स ओनली इन C2 प्लांट्स। तो जो कैल्विन पाथवे है वो ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल इज, तो जो मोस्ट क्रूशियल स्टेप है वो होता है कार्बोक्सिलेशन। बहुत ही अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट VBI। नेक्स्ट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर यूटिलाइज्ड इन द स्टेप ऑफ रिडक्शन। तो इसका आंसर आना चाहिए इन केस ऑफ रिडक्शन देयर इज ओनली 2 ATP एंड 2 NADPH आर यूटिलाइज्ड, यानी ऑप्शन ए में देखो आप 2 and 2। ठीक है, नेक्स्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी टर्न्स ऑफ फिक्सेशन आर रिक्वायर्ड। तो इन केस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायरमेंट ऑफ हाउ मेनी टर्न्स, देयर इज 6 टर्न्स रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट फॉर द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कैल्विन साइकिल व्हिच स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन केस ऑफ अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कैल्विन साइकिल, यानी कैल्विन साइकिल को बार बार आप करना चाहते हो तो जो रीजनरेशन स्टेप है वो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर रीजनरेशन ही नहीं होगा तो कैसे साइकिल कंटिन्यू होगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, रीजनरेशन करना पड़ेगा, देन कैल्विन साइकिल कंटिन्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ RUBP। तो इन केस ऑफ ATP, ठीक है, देयर इज हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन के लिए कितना ATP चाहिए। तो इसका आंसर आना क्या चाहिए, 1, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज करेक्ट अबाउट C4 प्लांट्स। तो इन केस ऑफ C4 प्लांट्स दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, यानी ऑप्शन 1 इज द ट्रू। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ये भी है ट्रू। देन क्या आएगा, दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोरेस्पिरेशन, ये भी है ट्रू, यानी PQR तो आएगा। देन दे हैव लेजर प्रोडक्टिविटी, ये हो गया रॉन्ग, यानी एस नहीं आएगा। एस जिसमें है वो हो गया रॉन्ग, यानी ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग, तीनों में ही एस है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं है, टाइम का मैनेज है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट बंडल शीथ सेल्स। तो बंडल शीथ सेल्स क्या होता है, बंडल शीथ सेल्स जो होता है वो होते हैं थिक लेयर्ड होते हैं एंड लार्ज अमाउंट क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एंड क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में देखो आप इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट कह रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रॉन्ग पूछा है, इनकरेक्ट पूछा था ना, मल्टी लेयर्ड ये तो है ट्रू, देन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये भी है ट्रू, थिक वॉल्स ये भी है ट्रू, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, बट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हैच एंड स्लेप पाथवे कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी। तो दिस इज साइक्लिक कैटेगरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहना चाहिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेप इज प्रेजेंट इन व्हिच सेल्स। तो ऑप्शन ए में क्या है, ओनली मेजोफिल सेल्स, ऑप्शन बी बंडल शीथ सेल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी पैसेज सेल्स। तो जो पेप है वो किस में पाया जाता है, पेप ओनली इन मेजोफिल सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट व्हिच C4 compound is transported in bundled sheath cell। तो in case of malate and aspartate, both malate and aspartate are transported in bundled sheath cell। ठीक है, नेक्स्ट the step of regeneration of phosphoenol pyruvate during C4 cycle occurs in only mesophyll cells, bundled sheath cells, both A and B, and passage cells। तो the step of regeneration of phosphoenol pyruvate during C4 cycle occurs in only mesophyll cell। ठीक है, regeneration of PEP। The binding of Rubisco for oxygen and CO2 is competitive, इसलिए तो फोटो रेस्पिरेशन होता है। The product of photo respiration is phosphoglycerate and phosphoglycolate, यानी both option A and 2। Which of the following is wrong regarding photo respiration। तो in case of photo respiration utilization of ATP it's true, ATP का यूटिलाइजेशन होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ लिटिल शुगर नहीं, no a little sugar is created produced, so option B is the correct answer। release of CO2 रिलीज होता है wasteful process, हाँ दिस इज अ wasteful process, फोटो रेस्पिरेशन इज अ मोस्ट wasteful process in plants। ठीक है, इसलिए तो C4 प्लांट्स इज मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स, क्योंकि C4 प्लांट्स में जो है उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर, दे हैव डिफरेंट रूबिस्को, नो,
दे हैव नो रूबिस्को, ये भी गलत है। दे हैव मैकेनिज्म टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ये हो गया ट्रू आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द बंडल सीड सेल्स आर रिच इन डैश वाइल लैक्स इन डैश, ठीक है। जो बंडल सीड सेल है उसमें क्या है, जो बंडल सीड सेल है उसमें जो रूबिस्को है वो होता है रिच, एंड जो पेपकेज है वो होता है लैक, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ मिजोबिल सेल फॉर C4 प्लांट दिस वुड बी ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट, हु गेव द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड व्हेन, जो जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है वो तो दिया था ब्लैकमैन ने, कौन से साल में, 1905 में दिया था, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वन विल ऑब्टेन इफ ही ऑब्जर्व्स CO2 फिक्सेशन रेट्स एट लो इंटेंसिटीज, तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, लीनियर। लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट्स इन शेड, इन शेड यानी छाए में, ठीक है। तो इसका जो मतलब है लिमिटिंग फैक्टर, क्यों लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि एज दे डू नॉट गेट एट मोस्ट 10% ऑफ द फुल सनलाइट, जो 10% है फुल सनलाइट के वो भी नहीं पाए जाते हैं शेड में, शेडो में, इसलिए लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर दोज प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, what is the major limiting factor for photosynthesis? So CO2 is the major limiting factor for photosynthesis. It is very very important, VBI लिख लो आप, VBI, ठीक है। नेक्स्ट, at low light conditions which plant responds to high CO2 conditions? At low light in conditions, in case of low light there is no plants which responds to CO2 concentration, यानी neither is the correct answer, neither, not CO2 नॉट C3 नॉट C4, ठीक है। नेक्स्ट, C3 प्लांट्स शो सैचुरेशन एट 450 माइक्रोलीटर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर ग्रोन इन ग्रीन हाउस बाई एक्सप्लॉइटिंग अ फैक्ट दैट हायर CO2 लीड्स मोर प्रोडक्टिविटी, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, टोमेटोज। टेम्परेचर विल इफेक्ट विच प्रोसेस मोर सेंसिटिवली, डार्क रिएक्शन और डार्क प्रोसेस। वाटर स्ट्रेस में रिड्यूस एवेबिलिटी ऑफ व्हिच फैक्टर, आंसर क्या आना चाहिए, CO2। वाटर स्ट्रेस जो है उसके वजह से CO2 का जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो आप। नेक्स्ट, वाटर स्ट्रेस में कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, ये तो करते हैं, विलिंग ऑफ लीफ, विल्टिंग ऑफ लीफ, देन क्या आएगा, रिड्यूसिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये भी है, विल्टिंग ऑफ लिप, ये भी है, यानी ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस, तो रिड्यूसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी ये तो है ट्रू, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा ये भी है ट्रू, रिड्यूसिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये भी है ट्रू, तो इंक्रीज सरफेस एरिया ये होगा या रॉन्ग, सरफेस एरिया को क्या करता है, डिक्रीज करता है वाटर स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, नॉट अ प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। तो ATP क्या है, प्रोडक्ट है, NADH इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन, ठीक है। NADPH प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टॉकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर, दैट इज कॉल्ड ग्राना। नेक्स्ट, कैम हेल्प्स इन द प्लांट्स, helps the plants in secondary growth, no. Disease resistance, no. Reproduction, no. Conserving water, yes. 4 is the correct answer, ठीक है। Cyclic photophosphorylation results in the formation of only ATP. In case of cyclic, only ATP is produced, and in case of non-cyclic there is NADPH and ATP both produced, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। First action spectrum of photosynthesis was described by T.W. Eagleman, option 2. Calvin cycle consumes more ATP than NADPH. What is the source of this extra ATP needed? तो इसका जो इसमें जो एक्स्ट्रा ATP नीडेड होता है वो कहाँ से पाया जाता है, वो पाया जाता है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड इंक्रीज्ड लीकीनेस ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन विल डायरेक्टली इफेक्ट, तो in case of leakiness of thylakoid membrane, the photolysis of water, synthesis of ATP, electron flow from the photosystem 2 to photosystem 1, the reduction of NADP plus, तो
ड्यू टू इंक्रीज इन लीकेनेस ऑफ द थायराइड मेम्ब्रेन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी डायरेक्टली इफेक्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस इन प्लांट्स इज। तो पहले वाटर से आते हैं इलेक्ट्रॉन, वाटर से कहाँ पे जाते हैं, वाटर से जाते हैं फोटोसिस्टम 2 यानी P680, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। देन आएगा P700, देन आएगा NADP+। ठीक है, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। द करेक्ट सीक्वेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनेली इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे इज। तो पहले आएगा कौन, क्लोरोप्लास्ट, देन आएगा पैरोक्सिज्म, देन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होते हैं। जो जितने सारे क्वेश्चंस भी मैंने किए हैं आज, ठीक है, डिस्कस किए हैं, सारे ही क्या है NCERT बेस्ड है एंड सारे क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक चैप्टर को कवर करना चाहते हो, देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराया है ना, 130 क्वेश्चंस कराया है जो फुल चैप्टर कवर्ड है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो तो इस वीडियो इज मोर देन एनफ। ठीक है, बस अच्छे से क्वेश्चंस को 1-2 बार देख लो, रिवाइज कर लो, वीडियो को 1-2 बार देख लो तो आपका काम हो जाएगा। फिर आप टेस्ट दे के देख लो, फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो गया है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो आएगा रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।